मैं बताता हूँ हमारी सफाइयाँ कैसे होती हैं। वो होती है हमारी अलेक्सा देवी के साथ। अलेक्सा, प्ले टॉप पंजाबी सॉन्ग्स। Punjabi from Hangama Music. What up guys? Welcome back to our channel. This is Sherry, And this is Sid. and if you're coming to our channel for the first time, welcome. And we are starting with a new series today. This is called the Lockdown series. So this series would basically be our experience during Lockdown 2.0. So you have seen us making videos about when we travel in Canada and various restaurants we go to. But from now on, we are going to be at home and we are going to show you how a life is for an immigrant in Canada. So nevertheless, although we are foodies by nature, by heart, so the food journey is never gonna stop for us. We'll keep on supporting the local restaurants out here by grabbing the pickup service or takeouts, and that's how we are supporting the community as a whole. You can follow us on Instagram and you can explore a lot of food options in and around Toronto and GTA. You will be very happy if you follow us on Instagram because the food items we post, it makes us happy at least. Yeah, and most of the people out there as well. Yeah, so food keeps us happy. We hope it will keep you happy too. So what is today's video all about? Let's talk about that. So past 2 days have been really hectic for us. So we made 2 videos live. So finally today we got time to do something for home. Yeah. Our house is in a mess and we really need to clean it. So we thought we'll shoot that as well, because everybody thinks that when you are living abroad, there is not much to clean. Everything is gonna be super tidy, super clean, and there's like once in a month probably you would be doing the cleaning bit, but that's not the case. So what we do is we clean our house on a weekend, either Saturday or Sunday. So today we are going to do that and we are going to show you how much time does it take and how dirty a home can be. Especially ours is messed up right now because we haven't been able to take care of it. All we were taking care of was our YouTube and Instagram. So time to take care of the house Yes. and let's go cleaning. Okay, so one thing is, once we are home, because it's snow outside and we are wearing our snowshoes, so we don't want our home to get wet, and we do one thing: we always keep our shoes outside. We don't take footwear inside our home. But for snowshoes, there is this snow tray. So what we really do is, and in fact you need to do it if you are in Canada or any place where there is so much snow, you need to have a snow tray. That is what we do. We always keep our snow boots in this tray so that whatever snow converts into water, it goes into this tray and not comes inside our home. So we have a shoe rack. You can obviously see everything is messed up here. We need to keep everything in place, but nevertheless everything will be clean today. Everything will be sorted at least for a week. So before starting up with the cleaning work, let me tell you one thing which you would have seen in our previous videos कि हम बेसमेंट में रहते हैं, अब आपको प्रॉपर पता भी चल गया है. एंड मोर ओवर बेसमेंट में रहने का रीज़न भी ये है कि सिंस एज न्यू इमिग्रेंट्स यहाँ पे सिंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, सो इट इज़ प्रेफरेबल, लाइक वी प्रेफर स्टेइंग इन अ बेसमेंट बिकॉज हमें पैसे बचाने हैं एंड वी वांट टू कीप सेविंग दैट मनी सो दैट इवेंचुअली वी कैन बाय अ बिग हाउस. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द क्लीनिंग. चलो. So as we told you, we were working on editing the videos for past 2 days, and you can see all the chairs lying around here. So this chair goes inside the bedroom. So it's not the place, it needs to go away now. Charger is lying on the chair, for what reason God knows. अभी एडिटिंग खत्म किया ना तो इसलिए. Yeah, so we have laptop, computer system, everything here itself, which needs to be sorted. Yeah. करनी है बहुत मेहनत आज तो. And this is the place we are
सिटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू कैन सी बहुत गंदा कर रखा है. यहीं पे सुबह चाय पी है, उसके बाद सारे पार्टिकल्स ये एंड देन यू कैन सी कारपेट पे कितना ज़्यादा गंदा है. सो यहाँ पे क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है. सो अ डिस्क्लेमर, इफ एनीबडी हैज़ OCD प्रॉब्लम, either this video can be very satisfying for you because you will see the mess and you will see how everything gets cleaned. Secondly, if it's going to irk you, you can just stop watching it here because our house is in a mess right now. So yes, all the utensils need to be cleaned. You can see how much tea I have consumed, but there has been no dishwashing since yesterday, so that needs to be sorted as well. Okay, so the major reason why we are making this video is because सबको लगता है कि यहाँ पे इतनी सफाई की जरूरत पड़ती नहीं है, but I'll show you हम कितने बजे शुरू कर रहे हैं सफाई करना and हमें कितना टाइम लग जाएगा. So let the cleaning begin and time note कर लेना क्योंकि मैं दिखाऊंगी हमें कितना टाइम लगा इसके बाद. तो अब शुरू करने चलते हैं अपनी क्लीनिंग. तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंस कारपेट्स हैं दो यहाँ पे, तो हम इसको बेसिकली क्लीनिंग करेंगे वैक्यूम से. तो ये वैक्यूम मैंने लिया था वॉलमार्ट से. ये बिसेल कंपनी का है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है BISSELL. $30 का था. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि $30 में वैक्यूम कहाँ से मिल गया, बट काम चलाओ वैक्यूम है. तो बेसिकली स्क्रब ऑफ हो जाता है. स्टेयरकेस के वहाँ पे जो मैट लगा हुआ है एंड यहाँ पे जो हमारे घर पे बेसिकली कारपेट्स लगे हुए हैं. अभी मैं दिखा रहा हूँ पूरा फिल्टर खाली है, कोई गंद नहीं है, बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल कम टू नो कि कितना गंद था. बट उससे पहले मैं बताता हूँ हमारी सफाइयाँ कैसे होती हैं. वो होती है हमारी अलेक्सा देवी के साथ. तो हम अलेक्सा देवी को बोलेंगे कि गाने शुरू कीजिए सो दैट हम अपना कार्यक्रम शुरू करें. अलेक्सा, प्ले टॉप पंजाबी सॉन्ग्स. Punjabi from Hangama Music. सो पहला कारपेट हो गया है एंड दूसरे कारपेट की तरफ चलते हैं. सो बेसिकली हमारे घर के अंदर 2 कारपेट्स हैं एंड 2 कारपेट्स रखने का लॉजिक ये था कि सिंस ठंडी के टाइम पे इतना ठंडा हो जाता है फ्लोर, बिकॉज यहाँ पे टाइल्स ही टाइल्स हैं एंड जो कि कारपेट्स हैं वो बेसिकली अब्जॉर्ब करते हैं हीट को. तो जो हीटिंग होती है घर के अंदर वो हीट को अब्जॉर्ब करता है कारपेट एंड जिसकी वजह से हीटिंग मेंटेन रहती है. सो दैट्स द रीज़न कि 2 कारपेट्स रखे हुए हैं हमने कि इतनी ठंड ना लगे. So by the time Siddharth is doing the vacuum, I'll set up the laundry. And so this is a shared laundry. We share it with a guy who lives upstairs. There's a washing machine and there's a dryer. So let's set the washing machine first. So I'll tell you a few things what we use here in our home. So we got this laundry bag from IKEA. So this is the one we use. Another thing which we have started doing recently is we started using these detergent strips. So one, they smell amazing. They are super easy to handle, so no more need to carry those big boxes. They are super heavy, so why not shift to these easy strips. Also they are eco-friendly and they smell amazing. We'll put the link in the description below. Tear it into half and just put it inside the washing machine. Since now we have additional things mask to be washed as well, so what I did was हम ना जब लॉन्ड्री कर रहे थे, जब सब कुछ धुल के आ जाता है हमारे को अपने मास्क मिलते नहीं थे. So we found a easy way out. We got a few bags like this. So मास्क हम उसमें डालते हैं, just close it and it goes inside the machine. So जब धुल के आएगा, you'll know your masks are inside that bag and it will be easy to find in the whole mess. You will get it anywhere in Walmart, Dollar. सो वैक्यूम हमारा ख़त्म हो गया है. अब बारी आती है बर्तन की, जो कि बहुत लाइन लग चुकी है सिंस कल से मैंने बर्तन नहीं धोए थे बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग चल रही थी. तो अब बर्तनों की तरफ चलते हैं क्योंकि बहुत पाइल अप हो रखा है यहाँ पे. सो एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया कि आप सोच रहे होगे कि मैं ग्लव्स क्यों नहीं यूज़ कर रहा. बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था ग्लव्स से धोने के लिए,
बट मेरे को हाथ में इतने ज़्यादा रैशेज हो गए थे जिसकी वजह से मेरे को स्टॉप करना पड़ा। बट नेवरदलेस उसके बाद से मैं धोता आया हूँ बर्तन, बट अब टच वो ठीक है। मोस्टली बेसमेंट्स में डिशवॉशर नहीं होता यहाँ पे, सो हमारे पास भी नहीं है, एंड इसलिए हम नॉर्मली अपने बर्तन धो रहे हैं। अगर आप लोग ग्लव्स यूज़ करते हैं अपने धोने के लिए बर्तन तो प्लीज़ कमेंट में बताना। सो मैं करने लगी हूँ झाड़ू। तो हम पूरे घर में झाड़ू मारेंगे और बहुत गंद निकलता है झाड़ू मारने से। सो दैट इज द मेन थिंग विच वी नीड टू डू। बट जो अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगती है ना, वो ये लंबा स्टिक वाला झाड़ू होता है विच इज वेरी इजी। इस वजह से मैं झाड़ू कर पाती हूँ। वो जो वो होता था ना नीचे बैठ के, जो इंडिया में हम जिससे झाड़ू मारते हैं उससे बहुत कमर की वाट लग जाती है। सो दिस इज सुपर इजी। इससे जल्दी जल्दी हो भी जाता है और इतना कुछ प्रेशर भी नहीं आता बॉडी पे। सो करते हैं शुरू। मेरे बर्तन ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहे हैं, एंड अब ये काउंटर टॉप सो ये इंडक्शन टॉप जहाँ पे हमारा खाना वाना बनता है वो भी बहुत गंदा हो जाता है, एंड अभी भी गंदा पड़ा हुआ है। सो हम ये SOS कंपनी आती है डोलरामा से, हम उठाते हैं, स्टील वूल पैड्स कहलाते हैं। तो इसको बस इस पे थोड़ा रगड़ो एंड इसके अंदर से ये सारी खुरचने निकल जाएंगी। तो इसको एक बार इस पे लगाएंगे एंड उसके बाद इसको एक साफ पेपर से क्लीन कर देंगे जो ये सपाचक कर देगा इसको। सो अब बारी आती है इसको चमकाने की। तो हमने किचन टॉवल यूज़ किए इसके लिए। सो इसको बस इसके ऊपर लगा के जहाँ जहाँ पे स्टील वूल पैड यूज़ हुआ था उसके वहाँ पे बिछा के इससे इसको चमका दो। जो मुझसे जेलस हो रहे हैं कि कितना अच्छा हस्बैंड है मेरा, आई वुड वांट टू से इट्स ओनली पॉसिबल टू क्लीन द होल हाउस इन जस्ट 1 day इफ यू बोथ आर डूइंग इट। सो आपने देखा होगा हम दोनों आधा आधा काम कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू डू आवर हाउस क्लीनिंग। क्योंकि क्लीनिंग होनी तो जरूरी है ही, इसलिए दोनों मिलके करना इज ज्यादा बेनिफिशियल, वरना एक बंदा लगे रहेगा तो पूरे दिन ऐसे ही निकल जाएगा तुम्हारा। एंड मेरे को देखो, आई एम स्वेटिंग लाइक अ पिग राइट नाउ क्योंकि मैंने अपना झाड़ू कंप्लीट कर लिया है। आई विल शो यू कि कितना गंद निकला है, क्योंकि सबको अगर लगता है कि यहाँ पे नहीं इतना डस्ट होता या इतनी गंदगी होती, बहुत गंदगी निकलती है, बहुत ज्यादा। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। सो ग्रॉस अलर्ट, बहुत गंदा कूड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, बट दिस इज आई वांटेड टू शो यू, दिस इज द रियलिटी। आधा 1 घंटा लग जाता है सिर्फ झाड़ू झाड़ू करने में, because that is the main thing with which you can clean all the corners. So this is how it is, and बहुत मेहनत लगती है। 2 चीज़ें जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है सफाई में, I think would be one is to wash utensils and the other thing is the झाड़ू part. So अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा क्या बचेगा, अब क्या करना है हमें? पोछा। ओ यस, तो पोछा बचा है और ऊपर से अभी हमारे को टेबल्स क्लीन करने हैं, सो वो भी करते हैं। चले? सो बीच में अब हम अपने प्लांट्स को भी वाटर कर रहे हैं। सो वीकली हम लोग करते हैं अपने इंडोर प्लांट्स को वाटर, एंड वी लाइक अ लॉट ऑफ प्लांट्स। तो हमने काफ़ी प्लांट्स रख रखे हैं अपने घर में। सो अभिषेक, स्वाति, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज द सेम प्लांट विच यू गिव अस, एंड बिकॉज इसका चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हुआ था जब हम इसको अपने घर लेके आए थे, सो इट स्टार्टेड डाइंग डाउन, एंड बहुत ज़्यादा हमने मेहनत करी थी सो दैट वी आर एबल टू रिस्टोर इट, एंड थैंकफुली ना कि हमने उसका जो ओरिजिनल था वो बचा लिया, बट अब नए नए लीव्स भी आने लग गए हैं। तो इस प्लांट को हम कहते हैं हैप्पी प्लांट। हाँ, ये हमारा घर का सबसे ज्यादा हैप्पी प्लांट है। या बिकॉज इसको जब भी पानी देते हैं तो इसके बाल एकदम जैसे स्पाइक्स नहीं होते, एकदम खड़े हो जाते हैं। सो बहुत सही लगता है मेरे को प्लांट, जैसे इसको पानी मिलता है बहुत खुश हो जाता है। सो अब टाइम है डस्टिंग का। डस्टिंग के लिए व्हाट वी डू इज, क्योंकि सूखे कपड़े से मैं पहले थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, बट देन वी यूज दीज एंटीबैक्टीरियल वाइप्स। सो डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं, इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। डन। सो मैं बाकी रूम्स की भी जाके डस्टिंग कर देती हूँ, और उसके बाद हमारा अभी भी बहुत काम बचा है। अभी हमें वॉशरूम क्लीन करना है, अभी हमें ड्रायर में कपड़े शिफ्ट करने हैं, और भी हमें 2-3 काम हैं, लग जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड।
सो जब तक मैं डस्टिंग करने जा रही हूँ, सिद्धार्थ को मैंने बोला है कि अब आप पोछे की ड्यूटी करो. सो ही विल बी डूइंग पोचा. और डू यू वांट टू सी? और क्या, सब यही तो देखते हैं कि घर पे लड़के पोछे कैसे लगाते हैं. तो पोछे वाला बन चुका हूँ मैं एंड शुरू करते हैं बिकॉज इसके बाद डिनर टाइम भी होने वाला है एंड भूख भी बहुत लग रही है. सो जल्दी जल्दी करते हैं. सो अब मैं आ गई हूँ वॉशरूम में एंड यू विल सी एवरीथिंग इज मेस्ड अप हियर. सो मैं ये सब क्लियर करूँगी एंड आई विल टेल यू हाउ आई ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. क्योंकि ऑर्गेनाइज एक्चुअली हम सब कुछ करते हैं. आज हमने जैसे सफाई की है तो 2-3 दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, बट 2-3 दिन बाद जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे वो रख देता है और उसके बाद वीकेंड के टाइम पे ये हालत हो जाती है. सो अभी इसको ऑर्गेनाइज करते हैं एंड आई विल टेल यू वेयर डिड आई गेट ऑल माई ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम. सो अभी के लिए सब कुछ सॉर्ट हो गया एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. सो व्हाट आई रियली डू इज आई गेट सम बास्केट्स लाइक दीज. नहीं तो क्या होता है ना, सब कुछ यहाँ पे फैल जाता है एंड एवरीबडी स्टार्ट्स पुटिंग थिंग्स जहाँ भी जगह मिलती है. सो मैंने अपना कुछ मेकअप का स्टफ यहाँ पे रख रखा है जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ. देन ऑल आर परफ्यूम्स आर हियर, देन माई ब्रशेज आर हियर एंड एक्स्ट्रा स्टफ गोज इन हियर. इससे सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है और फैलता कम है थोड़ा. एंड ऑल दीज आई गॉट फ्रॉम डॉलरामा. सब कुछ $1-2 में मिल जाता है. सो सुपर चीप एंड सुपर ऑर्गेनाइज्ड. सो हमारे कपड़े धुल चुके हैं एंड नाउ इज द टाइम इसको ड्रायर में शिफ्ट करने का. तो यहाँ पे धूप तो आती नहीं है, वैसे ही विंटर्स आ चुकी है, प्लस वो बाहर तार पे कपड़े टंगाने का सिस्टम नहीं है. सो ड्रायर में ही हम सारे कपड़े अपने ड्राई करते हैं, बट आई थिंक काफी कन्वीनियंट रहता है उससे. सो कपड़े हमने डाल दिए हैं. अब इसमें हम ये डालते हैं फ्लीसी. बेसिकली इससे कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है. सो वी ऑलवेज पुट इन दिस व्हेन वी आर पुटिंग इट इनटू ड्रायर एंड नाउ डन. सो हम बेसिकली अपने जो क्लोथ्स होते हैं मिड में रखते हैं, बिटवीन लेस एंड वेरी ड्राई. सो मिड हीट पे वी विल डू इट. आई डोंट लाइक टू डू इट ऑन हाई हीट बिकॉज उससे कपड़े थोड़े डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. सो वी डू इट ऑन मीडियम हीट एंड एकदम अच्छे से ड्राई हो जाते हैं. तो अब हमने सारी सफाई वगैरह कर दी है, बट पॉइंट आ गया कि हम जो कूड़ा कचरा है वो थोड़ा बाहर रख के आए बिकॉज काफ़ी इकट्ठा हो चुका था. सो यहाँ पर सिस्टम ये है कि कोई कूड़े वाला आता नहीं है ऐसे, बट नेवरदलेस गाड़ियाँ आती हैं हर ट्यूसडे जिसके लिए हमें कूड़े को एंड सेग्रीगेट करना पड़ता है डिफरेंट बैग्स में. सो ये जो ब्लैक वाला है बेसिकली ये है गार्बेज के लिए. देन वी हैव योर रिसाइक्लेबल एंड फाइनली दी ऑर्गेनिक वेस्ट. सो ऑर्गेनिक या किचन वेस्ट जो है वो हर हफ्ते ये कलेक्ट करते हैं एंड देन हर ऑल्टरनेट वीक दे विल कलेक्ट आइदर गार्बेज और रिसाइक्लेबल. तो हमारे पास डस्टबिन हैं बाहर, 3 डिफरेंट डस्टबिन है, एक रिसाइकल के लिए, एक गार्बेज के लिए और एक ऑर्गेनिक के लिए. सो रख के आते हैं अब, क्योंकि घर में सफाई हुई है तो घर को थोड़ा सफा चक रखना चाहिए. सो ये मैं बाहर रख के आता हूँ. मैंने जैकेट पहन लिया बिकॉज अंदर तो टी शर्ट में गुजारा हो जाता है हीटिंग में, बाहर वापस से स्नो है. सो वापस से अपने स्नो बूट्स पहनने पड़ेंगे एंड जैकेट चढ़ा ली है. कितनी समस्या है ना. सो दिस इज हाउ लाइफ इन कनाडा इज. सो अगर आपने टाइम देखा होगा, कुछ लोग ये भी देख रहे होंगे इसके अंदर कि यार 3.5 घंटे इतना कौन सा टाइम लगता है सफाई करने में. बट नेवरदलेस वी वांट टू टेल कि बहुत टाइम लगता है. अगर ढंग से करोगे सफाई तो बहुत टाइम लगता है. कपड़े भी होते हैं, फिर उसके बाद बर्तन धोने होते हैं, पूरा कारपेट के वैक्यूम करना होता है. तो दिस इज द थिंग, क्योंकि रोज सफाई नहीं होती है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन होती है. सो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. बट एक बार वो हो जाता है उसके बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एकदम घर अपना फ्रेश लगने लग जाता है. सो देखते हैं हम कितने दिन तक इसको इतना फ्रेश रख सकते हैं, बिकॉज आई एम श्योर नेक्स्ट वीकेंड हमारा सेम मेस होगा एंड हम वैसे ही क्लीन कर रहे होंगे. बस एक चीज और रह गई है, रूम फ्रेशनर छिड़कने की बात है और वो भी छिड़क देते हैं. हाँ, वो सिद्धार्थ का फेवरेट है. एंड ऑल्सो जो लोग हमारे को इंडिया में बोलते हैं, ऑल माई फ्रेंड्स हु से आई डोंट केयर एनी मोर एंड आई डोंट कॉल देम, दिस इज वाई, बिकॉज पूरा टाइम वी आर बिजी जस्ट मैनेजिंग
ऑफिस, होम और बहुत हेक्टिक लाइफ रहती है. सो कनाडा में एक चीज़ है, क्योंकि सब कुछ खुद करना है, सो यू नीड टू गिव योर हाउस टाइम. एंड इंडिया में भी आई एम श्योर उतना ही टाइम लगता है सबको, बट बिकॉज इंडिया में एक boon है house help which we miss dearly in Canada, and that is why we made this video so as to tell everybody कि if you're planning to come to Canada, this is going to be a part and parcel of shifting here. And also if you're already in Canada, you can very well understand what we go through and why we decided to make this video. सो ये था हमारा लॉकडाउन का डे 1 यहाँ पे, एंड ऐसी कहानियाँ और आप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है लॉकडाउन 2.0 में. सो हम दिखाते रहेंगे अपने चैनल पे. सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड कमेंट, एंड इफ यू कैन शेयर इट वुड बी रियली ग्रेट. सो until next time, take care of yourself, your family, and stay connected. Bye bye.